welcome to my channel. Thank you so much for tuning in. If you're seeing this face for the first time, don't forget to hit that subscribe button and like this video and let me know your thoughts in the comment section. Without any further ado, let's get started with today's video. This is for all the international students and professionals who are planning to come to US. I assume you got the admission from the dream school you wanted, you got your visa sorted, and now it's time to do all those things which are important to set your life in the US. I'm gonna cover everything in this video as in flat, bank, and all other things that are required that you should do before leaving your home country. और शुरू करने से पहले I really want to congratulate each and every one of you who are taking this leap of faith and coming here to US. I wish you enjoy this journey. I promise it's gonna be awesome. पहला कैटेगरी है फ्लैट. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये काम आप यूएस जाने से पहले कर लो. फर्स्ट स्टेप विल बी टू रीचिंग आउट टू योर सीनियर्स. आप सीनियर्स से लिंक्डइन के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रीच आउट कर सकते हो. दे आर द बेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि आपको बहुत ही डिटेल में बता पाएंगे कि उस एरिया में कौन से फ्लैट्स अच्छे हैं और कौन से नहीं. I have a set of questions that you should ask to your senior when you are searching for a flat. I'm going to talk about it but also post in the description. So if you want to copy and then send it over to a senior, you are most welcome. You can ask if your school provides a bus service. If yes, what is the bus route? कौन कौन से अपार्टमेंट हैं जो बस रूट में आते हैं, कौन से अपार्टमेंट हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एंड अगर कोई अपार्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि बस रूट में नहीं आते हैं, देन व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्ट मोड दैट द स्टूडेंट्स हैव टू टेक टू रीच यूनिवर्सिटी. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो अराउंड द सिटी. ऑल दिस क्वेश्चंस यू मस्ट आस्क एंड टेक एन आइडिया कि लोकेशन कैसा है, कौन सा अपार्टमेंट यू कैन कीप इन लिस्ट. नाउ व्हेन यू हैव द लिस्ट ऑफ द अपार्टमेंट यू आर लुकिंग फॉर, go and search those apartments in Google. You will get their website. Go to the website, put random dates, as in अगर आप 10th of August को आ रहे हो तो put 10th of August. अगर उस टाइम का नहीं मिल रहा है then you can try maybe 17th of August or 10th of September. Then maybe you can manage your stay in an arrangement of temporary accommodation and later shift to the apartment. In case they have availability, तो वो प्राइसेस के साथ अपार्टमेंट्स के लेआउट शो करेंगे. यू कैन चूज़ द यूनिट यू वांट एंड दे हैव अ एप्लीकेशन फॉर्म दैट यू नीड टू फिल, एंड हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देयर इज़ अ फी दैट यू नीड टू पे, एंड एवरीवन हु इज़ गोना शेयर दैट फ्लैट, सारे लोगों को वो एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी भरना होगा. एंड दैट्स ऑल. यू जस्ट हैव टू वेट. अगर आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होगा, जो मोस्टली सेलेक्ट हो ही जाएगा, you are gonna receive a mail from the apartment. They will ask for documents proving that you are a student coming, and they are gonna ask for your passport, I-20 and passport size photo. ये सारे information के साथ they're gonna make a leasing agreement जो कि आपको और आपके सारे flatmates को sign करने होंगे. Only when all of you sign that leasing agreement, वो flat आपके लिए book होगा. Once you're done with that, and that's it, you can't do anything else while you are back in your home country. Also, there are some restrictions in every flat here in the US, as in अगर आप 1B 1B which is 1 BHK में रहते हो तो मोस्टली यहाँ 2 से ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं. सो कीप दैट इन माइंड एंड डोंट फॉरगेट टू चेक अबाउट इट. उसके बाद यहाँ गेटेड एंड नॉन गेटेड अपार्टमेंट्स होते हैं. गेटेड एनीवेज सेफ होता है, नॉन गेटेड दोनों में ही सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते हैं. यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का कुछ फंडा नहीं है, यहाँ बंदे ही नहीं है. तो कैमरे लगे होते हैं जब गेटेड होता है. गेट आई थिंक कार्ड या कोड से ही खुलता है. एंड दैट्स ऑल यू कैन डू व्हाइल यू आर इन योर होम कंट्री फॉर बुकिंग योर फ्लैट एंड यू आर ऑल सेट. बट चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती. द डे यू वॉन्ट टू टेक द फ्लैट, यू हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू. पहला है दैट यू नीड टू सबमिट अ सिक्योरिटी अमाउंट which can be around $500 depending on the apartment that you are living and the city you are in. They are charging you this amount as security only because we as a foreign student does not have credit score and we do not have anyone else to vouch for us. So agar if you have a relative who are ready to vouch for you, you can show their credit score and then skip this security amount. You do not have to pay. But
in most cases people have to pay, and this is the amount that you need to give that day itself. The day you come to take the keys, उससे पहले यू नीड टू सेट योर इलेक्ट्रिसिटी इन द अपार्टमेंट. इलेक्ट्रिसिटी यहाँ इंडिया की तरह नहीं होती है, यहाँ कोई गवर्नमेंट बॉडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करा रही है. दे ओनली हैव प्राइवेट सर्विसेज एंड यू हैव ऑप्शंस टू चूज कौन से प्रोवाइडर की सर्विस लेना चाहते हो. हर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर के पास प्लान्स होते हैं सर्विस के. नाइट्स फ्री, इट मीन्स सिर्फ मॉर्निंग में आपके यूसेज पर बिल होगा बट रात में इट इज़ फ्री. और अगर 500 kWh से ऊपर आपका यूसेज है देन यू गेट $40 to $50 डिस्काउंटेड फॉर दैट बिल साइकिल. यू कैन चूज योर प्लान एज पर योर नीड. As in, if all your flatmates go to school in the morning every day, then आपके morning का usage इतना नहीं है and then you can go for night plan. Then आपका ओवरऑल बिल ही कम आएगा क्योंकि सुबह में कोई यूज़ नहीं कर रहा और रात फ्री है आपकी, तो you are in a win-win situation. Good electricity service providers in Texas are Frontier Utilities and JEXA. अगर आप किसी और स्टेट में हो then this is also a good question to ask to your senior कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स अच्छे हैं in your state. Also similar to the flat, they are also gonna charge some security amount from you just because you do not have a credit score. ये security amount around $300 होता है and which they promise that they're gonna give back once your plan is over. And in most service providers ये जो plan आप choose करते हो it has a contract of an year. तो आप ये भी ज़रूर चेक कर लेना कि आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट है. But mostly it lasts for an year. And that's all for the electricity. Let's move to the rental insurance. हर एक फ्लैट के लिए यहाँ रेंटल इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट. आपका रेंटल इंश्योरेंस कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द थिंग्स यू वांट टू प्रोटेक्ट एंड आपको कितना कवरेज चाहिए. मेरा रेंटल इंश्योरेंस $9 पर मंथ का है, ये इसी अराउंड रहता है. यू कैन यूज़ लेमिनेट फॉर योर रेंटल इंश्योरेंस. इट इज़ एन ऐप, यू कैन चूज़ आपको क्या क्या कवर करना है एंड देन इट विल शो यू द प्राइसेस अकॉर्डिंगली. दैट्स ऑल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ बैंक. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए एंड देन एक क्रेडिट कार्ड चाहिए. क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसी से आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होगा एंड देन मे बी लेटर ऑन आपको सिक्योरिटी पे ना करना पड़े. तो यू नीड बोथ ऑफ दीज. यूएस में 2 बैंक्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, दैट इज चेज एंड देन बोफा विच इज बैंक ऑफ अमेरिका. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट लेस देन 25 years ऑफ एज, इन दोनों बैंक में यू विल गेट अ फ्री अकाउंट. बट इफ़ नॉट, यू शुड चूज ट्रूएस्ट क्योंकि वहाँ पर यू विल गेट फ्री अकाउंट. Otherwise in banks में you have to have $1,500 in the account. You can't go below that, and which is a pain when you are a student. There are 2 types of accounts, checking and savings. A checking account is for everyday use. Savings account is needed जब आप सेव कर रहे हो किसी इन्वेस्टमेंट के लिए. तो कीप इन माइंड कि इनिशियली यू शुड चूज फॉर चेकिंग अकाउंट. यहाँ सारे फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यू नीड SSN. SSN पैन कार्ड की तरह होता है एंड यू विल ओनली गेट SSN इफ़ यू आर लीगल प्रोफेशनल वर्किंग इन द US. अगर आपको कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब मिलती है तब आपको SSN बनवाना होगा, बट इनिशियली आपके पास SSN नहीं होता है. तो to open the bank account, you have to be physically there with all the documents that proves that you are a student. And initially वो बिना SSN के चेज, बोफा या ट्रूइस्ट अकाउंट खोल देते हैं. And for credit card, there is only one credit card which allows you to open an account without SSN, which is Deserve. And that's all for your banking needs. The last need you will be having is for a phone. You will need it the moment you land here. तो यहाँ सिम कार्ड्स किसी भी सुपर मार्केट में मिल जाते हैं, एज इन वॉलमार्ट हो गया, टारगेट हो गया. बट मैंने ये गलती की थी, मैंने सर्च किया था कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर यूएस में सबसे अच्छे हैं, जिसमें कि AT&T, Verizon, T-Mobile, इन सब का नाम आता है. बट ये सारे प्रोवाइडर्स आर गुड फॉर गेटिंग इन टू पोस्ट पेड एंड फैमिली प्लान सर्विसेज. यहाँ पोस्ट पेड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. पीपल फॉर्म अ फैमिली एंड देन दे चूज अ प्लान. बट इनिशियली जब आप यहाँ आते हो, यू डू नॉट हैव क्रेडिट स्कोर और इनफ फ्रेंड्स टू गो फॉर दीज फैमिली प्लान्स. तो इनिशियली प्रीपेड इज़ योर ओनली ऑप्शन.
बट अगर आप इन सारे सर्विसेज का AT&T और वेराइजन का सिम कार्ड लेते हो तो इट कॉस्ट यू अराउंड $50. मैंने AT&T का लिया था, मुझे $50 लगा था, विच इंक्लूड्स द सिम प्राइस एज वेल। यहाँ ये सारे सर्विसेज बहुत महंगे हैं, तो अगर आप इनिशियली कोई प्रीपेड सर्विस लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर लाइका, मिंट एंड T-Mobile। ये सारे सर्विसेज $15 to $20 के होते हैं, बट जस्ट कीप इन माइंड दैट हमें इंडिया में 2 GB पर डे का यूज़ करने की आदत होती है, एंड यहाँ आई थिंक 3 GB फॉर एंटायर मंथ, 3 या 4 GB एंटायर मंथ के लिए मिलता है। सो कीप दैट इन माइंड, बट यू आर प्रिटी मच कवर्ड बिकॉज यहाँ हर जगह वाईफाई होता है। तो but this is something to be kept in mind. Initially you can go for these prepaid services, and जब आपके काफ़ी friends बन जाए and credit score generate हो जाए, you can go for family plan which is postpaid services. That's all for this video. This is all you will need to set you up for your new life in the US, and I wish you all the best. मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड आप सबको बहुत सारा प्यार। और अगर अभी तक आपने अपना पैकिंग शुरू नहीं किया है एंड यू नीड हेल्प विद दैट, सो चेक माय लास्ट वीडियो, आई एम गोना लिंक इट समवेयर हियर, एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक। बाय।